Hello, welcome to Maths on Tracks, आपका गणित mathematics for all of you. Myself Sanjay Tiwari. I am going to introduce some of the very important property in definite integral. That property is mostly used. Why we talk about the property? Using property, some of the integrals have not antiderivatives, but using properties you can solve the definite integral. Start. We have this is fx is integrand 0 to a is the limit 0 to a f of a minus x dx. तो देखो x आर्गुमेंट है या इनपुट कह सकते हो और ये किस में बदल जा रहा है a माइनस x में बदल जा रहा है. So this is very important property and mostly used in most of the numericals. Look at the lower limit, this is 0. Look at the upper limit, this is a. A is some non-zero number, 0 to a. So this changes into this. So I will take one numerical, then I will write some important formula. Using those formula, you can solve most of the numericals. So let us start. What is this property? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज somebody says you find integral of 0 to pi by 2 10 to the power n x divided by 1 plus 10 to the power n x. Okay, so suppose you have to find this integral, it is given in the exam. So what you will do? 0 lower limit, look at the lower limit, this is 0. Upper limit pi by 2, so this matches with a, so a becomes pi by 2 and 0 lower limit. This is integrand, so we will try to convert x into a minus x. This means x into pi by 2 minus x. So suppose this, I call this integral, this is I call this, suppose this is I, okay, and I call this number 1. तो using this property what we will get, क्या मिलेगा? तो using the above property, we will get what? X a 0 to a fx argument changes into a minus x pi by 2 minus x. So we have integral is 0 to pi by 2. So everywhere we will replace x by pi by 2 minus x to integrand. Okay, so x यहाँ देख सकते हो, this is 10 of n pi by 2 minus x. Okay, x को मैंने pi by 2 minus x से रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 plus 10 again pi by 2 minus x dx. ओके, अब ये तुम्हारा देखो 10 pi by 2 minus x is what? Cot. So this becomes 0 to pi by 2 cot to the power n x dx divided by 1 plus cot to the power n x dx. So pi by 2 minus x, 10 pi by 2 minus x cot x, 10 pi by 2 minus x cot x, n power ये रहेगा. I call this is second one. ठीक है, यही रूल रहेगा. यूज द प्रॉपर्टी, यू विल गेट टू इंटीग्रल्स. एक से भले दो, एक से भले दो वाला रूल लगा दोगे. अब दोनों को जनरली हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करना है हम लोग को. जितना सिंपल होगा we will have more simplest answer. So adding these two, so adding 1 and 2,
सो अब देखो ये 1 है और ये 2 है, लेफ्ट में i प्लस आई 2i और ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेंड ऐड हो जाएगा. सो वी हैव 2i and right hand side 0 to pi by 2 and we will add. देखो cot को क्या लिख सकते हो 1 by 10, तो दोनों को ऐड करोगे 1 by 10 लिखोगे, यहाँ भी 1 by 10, तो यूजिंग दिस we will get this is 1 dx. दोनों को ऐड करके देख लेना. cot को किस में रिप्लेस कर दोगे 10 में. So we have this implies I is equal to, यहां से देखो क्या मिलेगा pi by 2 और 1 का इंटीग्रल क्या हो गया जानते हो x pi by 2 minus 0 तो pi by 2. So therefore I is equal to pi by 2. So this is the answer for this numerical. In this way we proceed for different types of numericals. Okay, ये आंसर. अब एक रूल बना लो, 0 से pi by 2 इंटीग्रेंड होगा और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स होगा तो जनरली उसका pi by 4 लिखोगे. तो पहला फर्स्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑन दिस. फर्स्ट वन 0 to pi by 2 f of sin x divided by function of sin x प्लस फंक्शन ऑफ cos x. यहां ध्यान से देखना है. ओके, dx this is same as 0 to pi by 2 f of cos x divided by f of sin x plus function of cos x dx. both are same. कैसे? x की जगह pi by 2 minus x रखोगे तो cos में बदल जाएगा, ये cos sin में बदल जाएगा, this sin changes into this. both are always equal to pi by 4. ये ट्रिक रहेगा तुम्हारा इस सवाल में. सिमिलरली sin x को अगर 10 से रिप्लेस कर देते हो 10 cot से तो यू विल फाइंड सेम. यहाँ भी 10 से कर दोगे और यहाँ cot से कर दोगे तो 10 और cot का कॉम्बिनेशन भी यही देगा. समझ गए रेड से? और यहाँ cot कर दोगे, यहाँ 10 कर दोगे, यहाँ cot कर दोगे तो you will get pi by 4. So this is very important property we discuss in definite integral. Using this property we will solve difficult numericals. So I will take some more examples based on this property. So let us look at some more examples. Now look at the problem based on this property. Very good numerical. X 1 minus x to the power 99. बाइनोमियल लगाना पड़ेगा तो वेरी डिफिकल्ट. प्रॉब्लम लुक्स वेरी स्मॉल और कॉन्सेप्ट अगर तुमने बाइनोमियल लगाया तो इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो वी विल नॉट डू दिस. वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का ये यूज है कि कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेंट्स बिकम सिंपल यूजिंग प्रॉपर्टी. और इन सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंटी डेरिवेटिव्स जो होगा वो तुम निकाल नहीं पाओगे. तो अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो सिंपलिस्ट हो गया. तो लेट अस लुक व्हाट वी विल डू. मैं सपोज इसको कह देता हूं दिस इज न्यूमेरिकल 1. सपोज आई कॉल दिस इंटीग्रल आई. लेट अस कॉल दिस इंटीग्रल आई. इन दिस एग्जांपल आई कॉल इंटीग्रल आई. अब इसको मैं 1 कर देता हूं. दिस इज नंबर 1. ओके, अब नंबर 2 कैसे करोगे तो यूजिंग द प्रॉपर्टी. मैं केवल लिख देता हूं जस्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉपर्टी. सो यूजिंग द प्रॉपर्टी वी विल गेट यूजिंग प्रॉपर्टी क्या मैंने बताया था 0 to a f of x dx. ओके, यही प्रॉपर्टी आई टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉपर्टी. दिस कन्वर्ट्स इनटू 0 to a f of a minus x dx. तो इंटीग्रल जो है we will get I is equal to 0 to 1. ये तो रहेगा, देख सकते हो. अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट नो चेंज. x की जगह क्या रखोगे a minus x. a is what? a is 1. कंपेयर करके देख सकते हो a is 1 तो x की जगह तुम क्या रखोगे 1 minus x. और इस x की जगह क्या रखोगे, यहां भी रखोगे 1 minus
1 minus x to the power 99 dx. Okay, और I call this number to same integral. So we get second. अब यहाँ ऐड नहीं करोगे. If using this property integrand becomes simple, तो तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया. अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके. This is 0 to 1, 1 minus x तो 1 minus x ही रहा. यहाँ देखो 1 minus 1 कैंसिल हो गया. माइनस माइनस प्लस तो वी गेट x to the power 99 dx. तो ये तुम्हारा इंटीग्रेंड आ गया. अब इसको सेपरेट कर दो. वी कैन सेपरेट. कैसे? तो हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं. 0 to 1 x to the power 99 dx माइनस और 0 to 1 x to the power 100 dx. ओके, क्योंकि x to the power 99 इससे मल्टीप्लाई किया, x का पावर 99 को इससे किया, तो दो इंटीग्रल हो गया. नाउ दिस इज सिंपल. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ये 100 x का पावर 100/100 होगा और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट. तो जब वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट हियर 1/100 माइनस और यहाँ मिलेगा
आ गया माइनस पाई बाय 4, तो हो गया माइनस पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से सॉल्व करोगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज द आंसर फॉर योर न्यूमेरिकल। और इसमें मैंने कुछ ऐड भी किया है और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो देखो शुरू में मैंने 0 से पाई बाय 2 लिया था, तब ये सॉल्व करना डिफिकल्ट होता। बाद में मैं आई चेंज द लिमिट 0 टू पाई बाय 2 की जगह पाई किया मैंने, तो ये इजी हो गया। तो यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, वेरी गुड न्यूमेरिकल। इसमें पहले x निकालोगे तब ये करो। नाउ लुक एट द किंग्स प्रॉपर्टी। व्हाई वी कॉल किंग्स? इट इज जनरली यूज्ड इन डेफिनिट इंटीग्रल। इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स we apply this property. I just discussed 0 to a, इसी का स्पेशल केस है। Look at the King's property. A to B, lower limit A, upper limit B. Integrand fx dx, A to B, limit remain same. And look at the integral. X की जगह देखो A plus B minus X replace करोगे, both are same. What is geometrical meaning of definite integral? Algebraic sum of areas. तो कुछ जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया से कर सकते हो। अब मैं सवाल लेने जा रहा हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और ये कुछ काफी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्या है फर्स्ट न्यूमेरिकल? अगर किसी ने तुम्हें कहा इंटीग्रल आई पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ओके, और डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 टू द पावर n and is some real number and is some real number, okay, and कोई भी ले सकते हो, कोई रियल नंबर है, इसे निकालना है। अब यहाँ तो 0 है नहीं, ये पाई बाय 6, ये क्या है पाई बाय 3, ये पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री एंड पाई बाय 3 मीन्स व्हाट 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री। a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया, a और b से तुम a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे। तो क्या हम लोग करेंगे? आई विल कॉल दिस 1, इसको मैंने कहा a, आई कॉल दिस a, यहां से देख सकते हो, और आई कॉल दिस b, ओके, और ये a प्लस बी माइनस एक्स में बदल दोगे। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी गेट, यूजिंग प्रॉपर्टी मैं केवल लिख देता हूं, यूजिंग प्रॉपर्टी शॉर्ट में, तो I will get integral as I is equal to pi by 6, lower limit remains same, pi by 6, तो pi by 6, pi by 3 upper limit also remains same, only we will change integrand का argument बदलोगे, तो what that will become, dx remains same and we have 1 plus 10 of a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी देख सकते हो 90 डिग्री और माइनस एक्स, तो 10 ऑफ 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एन एक्स, और इसको मैंने कहा 2। जनरली अगर 2 सिंपल हो जाए तब तो 2 को अलग से सॉल्व कर लोगे, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी ऐड 1 एंड 2, तो एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो i प्लस आई 2i, और दोनों का इंटीग्रेंट टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदल दो, तो वी गेट 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3 एंड एडिंग दीज टू साइन कॉस में बदल दोगे तो दोनों का सम कांस्टेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 dx। This implies I is equal to, और ये देख सकते हो we have this is pi by 3 minus pi by 6 and this is pi by 6, 60 degree minus 30 degree is 30 degree, so therefore I is equal to what, 2 से डिवाइड कर दोगे तो pi by 12। तो this is the answer for this numerical, very good numerical, and I have explained this concept using this property. Okay, now look at the next problem, and this is also good problem, और इसी प्रॉपर्टी का मैं बात करने जा रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक, सपोज इंटीग्रल इज 1 to 6
x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5 dx. ओके, ये x माइनस 5 है. ओके, लास्ट वन. अब देखो ये सॉल्व करना है. कितने फैक्टर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 5 फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये तुम्हें निकालना है. अब ये अगर सवाल तुम मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल बी नो वेयर. 5 लीनियर फैक्टर्स, उससे मल्टीप्लाई करोगे, काफी लेंथी न्यूमेरिकल हो जाएगा. कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से ही तो बचना है हम लोग का टारगेट. तो आई कॉल दिस वन यूजिंग द प्रॉपर्टी. अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे, किंग्स प्रॉपर्टी आई कॉल, क्या मिलेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम x. तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड तो i ही लिखोगे, और ये 1 से 6 ही रहेगा. अब a प्लस बी माइनस एक्स, ये a है ये b है. अच्छा, यहाँ 1 से 5 कर दो, ठीक है, तब ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाएंगे. 1 से 5 ये मैंने चेंज कर दिया. तो a प्लस बी, तो क्या हो गया तुम्हें? 6. x की जगह 6 माइनस एक्स रिप्लेस करो. तो यहाँ 6 माइनस एक्स रिप्लेस करोगे पहले वाले में, तो मिलेगा 5 माइनस एक्स. दूसरे वाले में करोगे तो 4 माइनस एक्स. तीसरे वाले में करोगे 3 माइनस एक्स. चौथे वाले में करोगे तो 2 माइनस एक्स. और लास्ट में करोगे तो 1 माइनस एक्स dx. ओके, अब ये माइनस कॉमन लोगे तो यहां से माइनस 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 5 माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस बाहर आ गया. सो यहाँ 1 से 5 लिखना. ओके, मैं बार बार 6 लिख दे रहा हूं, लगता है 6 अच्छा लग रहा है. तो 1 to 5 लेना है हमेशा. तो वी हैव, अगर कॉमन लोगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग -1 कॉमन, तो वी गेट दिस इज माइनस आई आ जाएगा, देख सकते हो. और दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 0. and this is your answer using this property. So I have explained the concept using this property in simplest way. Keep watching the video of Maths on Track सबका गणित. इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जेई एडवांस वगैरह में भी ये सवाल पूछा गया. और नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेगा तब काम करेगा, इवन रहेगा तब तो ये काम नहीं करेगा. तभी तो माइनस मैंने कॉमन लिया 5 टाइम्स, तो माइनस बाहर आ गया. This is very good numerical in terms of JEE Mains, JEE Advanced, NDA, KVPY, all types of exam. That's why I called Maths on Track Sabka Ganit. Keep watching the video of Maths on Track Sabka Ganit. You will find different videos for different competitive exam according to your choice. Have a nice day. Thank you.